Today I will discuss a new topic, impulse generation and action potential, or impulse generation of nerves impulse or action potential। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे या इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हाउ टू जनरेट इम्पल्स एंड हाउ टू ट्रेवल्स, कैसे जनरेट होती है इम्पल्स और कैसे ट्रेवल करती है। तो इस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा रिवीजन करवाते हैं, किसका? न्यूरॉन की। This is the neurons and this is the dendrites and this is the Schwann cell we talk about this is structure dendrite. It is a fibrous structure and the main function is receive the signals or receive the stimulus, receive the signals or stimulus. On the dendrites, some granules like structure and it is also present in cell body. This structure is known as nasal granules. What is the function of nasal granule? Nasal granules basically modification of ribosome. Ribosome. What is the function of ribosome? The main function is protein synthesis or protein formation. This is nucleus. This is nucleus, and this structure is called cell body or cytosol. This structure is called axon, and this is Schwann cell. Schwann cell. What is the function of Schwann cell? The main function is formation of myelin sheath in PNS. Myelin sheath in PNS, peripheral nervous system. This is axon. It is axon terminal
ये स्ट्रक्चर आपका क्या है? ये स्ट्रक्चर है साइनेप्टिक नॉब। Synaptic knob. End of axon, some bulb-like structure appear is called synaptic knob. And synaptic knob contain some vessels. This structure is called synaptic vesicles. Synaptic vesicles, and synaptic vesicles contain some chemicals. They are contain some chemicals. It is called neurotransmitters. This is called neurotransmitters. Basically, it is a chemical. Okay. Now, for example, this is signal. Signal received by dendrites. सिग्नल रिसीव कौन कर रहा है? डेंड्राइट्स. एंड pass on the cell body, and further signal travels via the axon. Signal travels via the axon and finally reach to the axon terminal. This structure is called axon terminal. Now, अब यहां तक सिग्नल आ चुका है. अब इसके आगे की बात हम लोग करेंगे. मैकेनिज्म. अब इसके आगे बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द इम्पल्स जनरेशन. Mechanism of impulse generation. This is axon. Inside axon negative charge and outer side of the axon positive charge. अंदर साइड नेगेटिव चार्ज है और बाहर साइड क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. अंदर साइड ये नेगेटिव चार्ज क्यों है? Why the negative charge present inside the axon? Due to negative charge, proteins and ions. Negative charge of proteins and ions. Axon membrane is called axonema and cytoplasm is called exoplasm. Or ICF, intracellular fluid, and outer side of the axon ECF, extracellular fluid.
The inside of axon, potassium concentration is high. Potassium concentration is very high as compared to sodium ions. In case of extracellular fluid, sodium concentration very high as compared to potassium concentration. Exolemma has some channels like sodium voltage gated channel, this one, potassium voltage gated channel, and last one, sodium potassium pump. Now हम लोग अब बात करेंगे कि यहां से कैसे इंपल्स जनरेट होती है। तो एट दिस टाइम पोटेंशियल ऑफ एक्सोलेमा इज -70 मिलीवोल्ट। इस समय अगर आप गैल्वेनोमीटर से अगर एक्सॉन के मेम्ब्रेन का पोटेंशियल आप मेजर करेंगे तो ये कितना आएगा, -70 मिलीवोल्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज इनसाइड ऑफ द एक्सॉन। अब यहाँ पे बात ये है कि इस समय हमारी जो मेम्ब्रेन है वो किस स्टेज में है, पोलराइज्ड स्टेज में, या आप उसको बोल सकते हो रेस्टिंग स्टेज पर। ठीक है, अब आपको पहले थोड़ा सा आपको इधर समझना होगा कि ये हमारा एक्सॉन का एंडिंग है और ये हमारा दूसरा जो है किसी दूसरे न्यूरॉन का क्या है, ये डेंड्राइट है। ठीक है, ये नर्व दूसरे किसी एक्सॉन की नर्व एंडिंग है, या आप बोल सकते हो एक्सॉन एंडिंग है, और ये किसी भी दूसरे हमारे न्यूरॉन की क्या है, ये डेंड्राइट। तो हम लोग यहाँ पे ये देखें कि यहाँ वेसिकल्स होती हैं, वेसिकल्स कंटेन सम न्यूरोट्रांसमीटर्स। दिस इज प्री synaptic membrane. This structure is called synaptic cleft, and this membrane is called post synaptic membrane. Post synaptic membrane has receptor. Now हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ इम्पल्स जनरेशन। Now here present कैल्शियम चैनल्स। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि कैल्शियम चैनल जैसे ही इंपल्स जैसे ही आएगी वैसे ही क्या होगा कि कैल्शियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम चैनल्स आर ओपन। कैल्शियम चैनल्स जैसे ओपन होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम इनफ्लक्स into the synaptic node, and bind with the synaptic vesicles. Calcium bind with the synaptic vesicles. And the result, synaptic vesicles
आर ब्रस्ट। जितने भी साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, फॉर द एग्जांपल दिस इज द calcium ions. When the calcium ion bind with the synaptic vesicles and the result vesicles are ruptured, vesicles हमारी क्या हो जाएंगी, burst हो जाएंगी, and neurotransmitters are released. Now ये हमारे पास क्या हो गई, burst हो गई, और neurotransmitters हमारा कहाँ आ गया, neurotransmitters are released and reach to the synaptic cleft. यहाँ पे हमारा सारा क्या हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर हमारा क्या हो गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया। ठीक है ना। when the neurotransmitters are bind with the receptors, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही क्या होगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, रिसेप्टर के साथ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही बाइंड होगा, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास लगे होते हैं क्या, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, तो अब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ऑटोमेटिकली, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स आर ऑटोमेटिकली ओपन एंड सोडियम आयन इनफ्लक्स, सोडियम आयन, we know that sodium ions always present ECF, या सोडियम आयंस हमेशा ECF में प्रेजेंट होते हैं और इनका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होता है, जैसे कि आपको यहाँ हम बताएं, ये है हमारा ECF और ये है हमारा ICF। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए कि जैसे ही रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, जैसे ही रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, तो आप इस वाले फिगर में जैसे ही क्या हुआ, रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तेजी से क्या हुआ, सोडियम का इनफ्लक्स हुआ। ठीक है, अच्छा, मेम्ब्रेन को हम लोग मेम्ब्रेन में 3 स्टेज पढ़ेंगे, एक तो पोलराइज स्टेज, दूसरा हमारे पास डीपोलराइज, और तीसरा हमारे पास रीपोलराइज। ठीक, तो 3 स्टेज पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पोलराइज स्टेज, सेकंड डीपोलराइज स्टेज एंड थर्ड वन रीपोलराइज स्टेज। ठीक है, अब मेम्ब्रेन को अगर हमको क्या करना है, मेम्ब्रेन को हमको अगर डीपोलराइज करना है, तो इसको क्या देना पड़ेगा, हमको क्या देना पड़ेगा, इम्पल्स, इट मींस सिग्नल। ठीक है, तो अगर मेम्ब्रेन को हमको डीपोलराइज करना है, तो इसको क्या देना पड़ेगा, एक सिग्नल देना पड़ेगा, और वो सिग्नल क्या होगा, वो सिग्नल सिर्फ इसको क्या करेगा कि इसको एक्साइट करवाएगा, सिग्नल क्या करेगा, सिर्फ एक्साइट करवाएगा। तो वो सिग्नल जो है, वो सिग्नल कितना होगा, -55 मिलीवोल्ट, सिग्नल कितने होगा, -50 मिलीवोल्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी? इट इज द मिनिमम एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी टू membrane required for the depolarization. It is the minimum energy required for the depolarization of membrane. ये क्या है, सबसे कम एनर्जी है। अगर हम इतने की एनर्जी देंगे, ठीक है, अगर हम इतने की एनर्जी देंगे, तभी हमारा ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होगा। ठीक है, अगर इससे अगर कम देंगे तो ये चैनल ओपन नहीं होंगे। अगर इससे हम लोग ज्यादा दिए, ठीक है, अगर इससे ज्यादा भी दिए, ठीक है, तो तब भी, ठीक है,